an extremely important news pertaining to the NLS 3-year LL.B program जो NLS Bangalore है, उन्होंने अभी recently ही अपना कोर्स लॉन्च करा है for the 3-year LL.B program, and we have been waiting for so long for the syllabus, for the paper pattern. Finally it is out. We are going to discuss all of that in this video. Alongside we will also discuss कि कैसे इसकी preparation हमको करनी है, how to prepare for this examination. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. So let's directly move to the website of NLS. The link to the website I'll provide in the description of this video. Let's directly go to the pattern. What is the admission pattern that they have provided here? Admission, as you can see here, it will be taken through the NLSAT exam. सो जैसा कि क्लैट के टाइम पे देखा था, NLAT का एग्ज़ाम इन्होंने निकाला था अपना. ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रेवलेंट नाउ फॉर द 5-year प्रोग्राम, दे स्टिल टेक क्लैट ओनली. फॉर द 3-year प्रोग्राम द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड NLSAT, NLSAT, NLS Aptitude Test. Then what does it comprise of? Now the interesting thing is that there is an interview. So apart from your written examination, you will have to give an interview also for this particular college. हम already पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर हमें 60 seats जो है वो available है. So the fight is going to be a lot. There will be a lot of competition. Let's move further to the written test. It says 140 marks. 140 marks का total आपका ये written test होने वाला है. Now written test में भी there is further division. What is the division? That there will be MCQs, objective type MCQs for 75 marks, and for the remaining 65 marks out of 140 there will be subjective questions. इसका मतलब ये हुआ कि जो written test है वो ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा. ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है द करेक्ट आंसर. दैट इज़ वन. दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये 75 मार्क्स का होगा. देन द अदर पार्ट इज द रिटन टेस्ट दैट विल बी सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव मतलब यू विल हैव टू राइट आंसर्स. सो इट इज़ नॉट दैट द ऑप्शंस विल बी गिवन एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनीथिंग. आपको डिटेल में आंसर लिखने पड़ेंगे. तो ये जो पार्ट है ये 65 मार्क्स का है. जो 10 मार्क्स बच रहे हैं उसका आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा. So I hope this is clear for now. Moving further, let's see that what all further is given as to the syllabus. Firstly, they have mentioned something about the ratio of the seats. Now understand this procedure. Subjective questions को आंसर करने की opportunity, the opportunity to answer the subjective questions will be given only to those people who will qualify for the objective test. मतलब what is the meaning of this? The meaning is that not each and every student will be able to give subjective test. It is only the people who qualify the objective test, they can sit for the subjective test. हर एक candidate subjective test नहीं दे सकता है. Only the students जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, वो ही सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बैठ पाएंगे, वो ही डिटेल्ड आंसर राइटिंग के लिए बैठ पाएंगे अगर वो MCQ वाले पोर्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाए. यहाँ पे इन्होंने रेशियो ऑफ सीट्स दिया है. दे हैव सेड कि एक सीट के लिए दे विल एडमिट 5 कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेवल. मतलब MCQ टेस्ट होने के बाद, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने के बाद जो लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी वो इस तरह से करी जाएगी. टोटल सीट्स हमारी 60 हैं. दे से एक सीट के लिए 5 लोग ये लोग बुलाएंगे. तो मतलब टोटल 300 पीपल विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सब्जेक्टिव टेस्ट. जो लोग सब्जेक्टिव टेस्ट दे पाएंगे वो 300 लोग होंगे. उनमें से फर्दर सिलेक्शन होगा फॉर इंटरव्यू. Only the people, there will be 300 students who will be called for the subjective test because they have kept 5 students for 1 seat after the objective test. Then further they have said that subjective test के बाद जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए भी रेशियो दिया हुआ है that for 1 seat they are going to admit 2.5 स्टूडेंट्स. दैट मीन्स जो 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं
उसमें से भी फर्दर कम हो जाएंगे. हाफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट 150 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. देन जब इंटरव्यू राउंड होगा उसमें से ऑब्वियसली हमको निकालने शॉर्ट लिस्ट करने हैं फर्दर, एंड हमें 60 सीट्स पे पहुंचना है. देन फाइनल रैंक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू. इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जो हमारा 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, वो हमारे लिए क्वालिफाइंग एग्जाम बन जाता है. बिकॉज फाइनल रैंक डिटर्मिन करने में उसमें जो मार्क्स आए दे वोंट मैटर. इट इज़ ओनली लाइक एन एग्जामिनेशन फॉर यू टू क्वालिफाई टू बी एबल टू रीच टू द सब्जेक्टिव टेस्ट. अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तब आप सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बैठ पाओगे. तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के मार्क्स हैं वो हमारी फाइनल रैंक में नहीं जुड़ेंगे. फाइनल रैंक में सिर्फ सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे. आई होप आई एम एबल टू क्लियर थिंग्स आउट फॉर यू. यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. प्लीज़ फॉलो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न. देन रिजर्वेशन पॉलिसी, दे विल फॉलो देयर ओन रिजर्वेशन पॉलिसी. जो रिजर्वेशन के लिए दे हैव सेड दैट यू नीड टू लुक एट द नोटिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दिस एंड अदर डिटेल्स पर्टेनिंग टू द एडमिशन प्रोसेस. नाउ ड्यूरेशन, हमें ये टाइम कितना मिलेगा इस टेस्ट के लिए? टोटल हमें 150 मिनट्स मिलने वाले हैं. अब ये 150 मिनट्स में एप्लीकेंट्स जो हैं दे विल बी टेस्टेड ऑन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन द फॉलोइंग. 75 मार्क्स का है. मैंने पहले ही एक वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया था कि नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, ये एरियाज जो हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट बनते हैं when we speak of any law entrance. So here they have given that English में क्या, English comprehension. So comprehension will matter. Comprehension में हमारा vocabulary भी आ जाती है because when they give you comprehension they do ask you questions from vocabulary as well. So English comprehension is that you will be given a reading comprehension and you have to answer the questions based on those. This is the easiest part. Let me tell you, English comprehension solve करना बहुत easy होता है because the answers to those questions can be ascertained from the passage itself. ये 25 marks का है. Then current affairs का portion. So there is no static GK. There is current affairs only. करंट अफेयर्स 25 मार्क्स का है. करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं चैनल पे कवर. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो नोट्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स के सेपरेटली ऑन द वेबसाइट दैट वी आर प्रोवाइडिंग द बंडल, वहाँ पे वी गिव यू मंथली करंट अफेयर्स एंड अलॉन्ग विद द नोट्स फॉर दैट वी आर गिविंग यू 150 MCQs पर मंथ फॉर प्रैक्टिस. देन द फाइनल पार्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है उस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पर आपसे स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पूछा जाता है कि इससे आपको क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट से आप क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्या अजम्पशन निकाल सकते हैं. So that is the kind of critical reasoning they are going to ask you. Something like what can weaken the argument, what can strengthen the argument. So that is what they will essentially ask. Now they have given in the brackets including logical reasoning and legal aptitude. So we can say कि critical reasoning पे जो questions हैं वो logical reasoning से पूछे जाएंगे and legal aptitude से पूछे जाएंगे. नाउ लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये भी 25 मार्क्स का है. सो वी कैन सी द वेटेज इज इक्वल फॉर ऑल दीज सेक्शंस. तो लॉजिकल रीजनिंग में जैसा मैंने बोला कि स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में, सो यू कैन फॉलो दैट. देन फॉर लीगल एप्टीट्यूड, क्रिटिकल रीजनिंग से जो समझ आ रहा है कि इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन, स्ट्रेंथन वीकन आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ एरियाज दिए जाएंगे, कुछ लॉ के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, लॉ दिया जाएगा, एंड यू हैव टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस जहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इस पैसेज में
क्या ऐसी बात है जो इस आर्ग्यूमेंट को वीकन कर सकती है या इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर सकती है, क्या इन्फ्रेंसेस हम इस पैसेज से ड्रॉ कर सकते हैं. सो सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस माइट कम. Now the thing is that they haven't provided a mock test as such. इन्होंने कोई भी एक सैम्पल पेपर अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड किया हो कि हमें एक क्लैरिटी हो जाए. जब क्लैट का नया पैटर्न रिलीज हुआ था देन दे हैड गिवन अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर बिकॉज पीपल वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, पहली बार अलग पैटर्न चेंज हो गया है, तो किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. बिकॉज ऑब्वियसली एक पेज पे पूरा सिलेबस मेंशन कर देना इज़ नॉट सफिशिएंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू लुक एट द पेपर कि कैसा पेपर दिखेगा, उस हिसाब से तैयारी करी जाए. हाउएवर वी कैनॉट सी अ मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर एज ऑफ नाउ ऑन द वेबसाइट. मे बी दे विल कम आउट विद इट लेटर और दे माइट नॉट इवन कम आउट विद इट. ये अभी देखना बाकी है. एक बार फर्दर लेट्स लुक एट द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्टिव टेस्ट. सब्जेक्टिव टेस्ट में दे आर गोइंग टू आस्क यू लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 50 मार्क्स. सो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. सो देयर विल बी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. केस स्टडीज़ आपको यहाँ पर दी जाएंगी जिनको आपको शॉर्ट में आंसर करना है. नाउ हियर दे से प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं है कि उन्हें लॉ के बारे में पता हो, पूरी लीगल जो प्रोविजंस हैं वो पता हो. हाउएवर व्हाट हैपन्स हियर इज़ दैट क्लैट में भी ऐसा होता है कि पैसेज आता है विच इज़ ऑफ अ लीगल टच. सो लीगल रीजनिंग में इवन दो दे से प्रायर नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट उसका एक लीगल टच होता है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट पैसेज बेटर इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको लीगल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो. बेसिक्स, डीप में नहीं जाना, बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आईपीसी के बारे में, क्रिमिनल लॉ जो है, टॉर्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये बेसिक्स हैं. सो ये बेसिक्स हमको पता होनी चाहिए व्हेन वी स्पीक ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बिकॉज जो केस स्टडी आएंगी उसमें ऐसे लीगल वर्ड्स यूज़ करे जाएंगे जिसका मतलब अगर हमें पहले से पता होगा तो हमको आंसर करने में इट विल बी बेटर फॉर अस टू आंसर सच क्वेश्चंस. अब यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे. 10 questions will be given and 5 marks each for every question. So 5 marks हर एक क्वेश्चन को होंगे एंड टोटल 10 क्वेश्चंस इस एरिया से आने वाले हैं. टोटल 50 मार्क्स का ये एरिया होने वाला है. देन करंट अफेयर्स का 15 मार्क्स का एरिया है. सो करंट अफेयर्स में किस टाइप से ये लोग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. इट विल कंसिस्ट ऑफ एन एसे. 500 वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड लिमिट दी हुई है. 500 वर्ड्स तक का आपको ऐसे लिखना होगा एंड उसमें क्या होगा, एक ऐसे लिखना है, 1 ऐसे. इट सेज 1 ऐसे. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 1 ऑफ द 3 ऑप्शंस. सो बेसिकली आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन तीनों में से ही किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना होगा. अब यहाँ पर क्या टेस्ट करा जाएगा कि नॉलेज कि उस इशू के बारे में क्या, उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए. जो इवेंट के बारे में बात हो रही है, जो करंट इवेंट के बारे में बात हो रही है. एबिलिटी टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड अ वेल स्ट्रक्चर्ड essay. Knowledge of law is not expected. Here again they've said that prior knowledge of law is not expected, but at the same time they expect you to have knowledge of the issue in hand. current affairs का जो issue डील कर रहे हैं उसके बारे में, and the ability to make cogent written arguments. ये चीज़ें आपकी टेस्ट करी जाएंगी. सो आपको ऐसे में बेसिकली यू हैव टू क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स. जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें हमें ट्राई करना है कि हम चीज़ों को क्वेश्चन करें एंड एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर जो है ऐसे का इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. सो इस पे we'll have a detailed video on each of these things separately कि किस तरह से हमें आगे चलना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है. अभी फॉर नाउ व्हाट आई वुड से इज़ कि यहाँ पर आप सिलेबस देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का. सो जस्ट स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन तो आप रोज़ ही प्रैक्टिस करते रहिए. बी रेगुलर विद करंट अफेयर्स डेली.
Now, the problem areas for you might be legal aptitude and legal reasoning, जहाँ पर subjective area से question आएंगे, and also critical reasoning. Although जो logical reasoning वाला part है, that is not that difficult, it is pretty easy, वो handle हो जाएगा. जैसा कि मैंने बोला, हमने मॉड्यूल में भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में. यू कैन सी मैथ्स इज़ नॉट हेयर. देन लीगल एप्टीट्यूड और के बारे में क्रिटिकल रीजनिंग पे भी लेट्स सी कि अभी हमारे पास टाइम है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम आउट विद समथिंग, टू कम आउट विद अ मॉड्यूल टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ताकि आप इन एरियाज़ के लिए प्रिपेयर कर पाएँ. And once you qualify both these things, then you will be selected for the interview, you will be called for the interview, जहाँ पर आपकी articulation skills देखी जाएंगी कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपकी original thinking skills देखी जाएंगी, आपकी reasoning ability देखी जाएगी, and also they will judge you on your passion for law and public service. So ये चीज़ें important हैं. इसमें आई थिंक ये चीज़ें भी मैटर कर जाएंगी कि आपका सीवी कैसा है, आपने पास्ट में क्या क्या चीज़ें करी हैं यहाँ पे, बिकॉज देव सेड पैशन फॉर पब्लिक सर्विस. तो अगर आपने NGOs वगैरह में काम किया है, दैट माइट होल्ड इम्पोर्टेंस इन योर इंटरव्यू. एंड इफ़ यू हैवंट ट्राई टू डू समथिंग, बिल्ड अपॉन दीज थिंग्स, क्योंकि इंटरव्यू में आपका जो पैनल होगा, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, पैनल में एकेडमिक्स के लोग होंगे एंड साथ साथ एमिनेंट जूरिस्ट्स होंगे. एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब है कुछ नोन जजेस, they will be part of the interview panel. So you can expect some retired judges to be part of this interview panel. And यहाँ पर इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, although वो 10 मार्क्स हैं, but I'm sure it will be a learning experience for you. So get your hands down with this preparation. 2-3 चीज़ें जो मुझे यहाँ पे problematic लग रही हैं वो ये है कि एक तो सैम्पल पेपर कोई यहाँ पर गिवन नहीं है. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट टू देम एंड उनको पूछते हैं, बोलते हैं कि एक सैम्पल पेपर एटलीस्ट रिलीज़ किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स कैन बी क्लियर एज टू किस टाइप से हमारा क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है. Then there are certain other gray areas with respect to legal aptitude, especially where they say problem based questions, जहाँ पे short answers they will expect out of you. Normally what happens is in legal reasoning, I am telling you, because here they've said legal aptitude, legal reasoning. लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में, जब लीगल एप्टीट्यूड मतलब है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है लॉ को लेके. लीगल रीजनिंग में मोस्टली व्हाट दे आस्क यू इज़ कि नॉर्मली फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया है, कोई लॉ का प्रोविजन दिया है कि ये लॉ ऐसा कहता है. देन दे आर गिवन सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स आपको उस प्रिंसिपल पे लगा के कंक्लूजन पे आना होता है. नॉर्मली ये MCQ फॉर्म में होता है, बट यहाँ पर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आएँ एंड इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन ऑप्शन यू माइट हैव टू राइट अ डिटेल्ड आंसर. 5 मार्क्स के हिसाब से आपको एक डिटेल्ड आंसर लिखना होगा वहाँ पर पर्टेनिंग टू योर लीगल क्वेश्चंस. देन फर्दर आईड लाइक टू से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट इवेंट से अपडेटेड रहें, बिकॉज यहाँ पर एसे जो है वो आपसे एसे पे भी आपको जज किया जाएगा. 15 मार्क्स का एसे लिखना है आपको 500 वर्ड्स में. सो बी वेरी रेगुलर विद द करंट इवेंट्स. पास्ट ईयर के जो 2021 के इवेंट्स हैं, स्पेशली आफ्टर जून, वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं. उनके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी है. इवन लीगल करंट इवेंट्स के बारे में नॉलेज रखनी है. जैसे अभी हमने देखा कि हमारे CDS जिनका प्लेन क्रैश हुआ था, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक सैड इवेंट है. एंड इसके बारे में मान लीजिए इसको टच अपॉन करते हुए कोई टॉपिक आ जाता है ऐसे लिखने के लिए. सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स. एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वो लोग टेस्ट करेंगे. ऑल्दो हम कुछ और वीडियोस के साथ आएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेपरेशन की, किस तरह से इसकी प्रेपरेशन करी जाए. एंड ऑल्सो आई वुड एडवाइज़ यू कि डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, बिकॉज वहाँ पर हम जो इम्पॉर्टेंट लीगल इवेंट्स होते हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल
क्वेश्चंस होते हैं, इश्यूज होते हैं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, उसके बारे में हम अपडेट्स डालते रहते हैं वहाँ पे। एंड यू मस्ट फॉलो दैट, ताकि आपको जानकारी रहे कि क्या लीगल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड विद दैट आई थिंक हमारा जो पूरा पैटर्न है वो एक बार हमारा डिस्कस हो गया है। इसके बाद आई विल स्टार्ट कमिंग आउट विद वीडियोज़ फॉर योर प्रेपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए एज टू द पैटर्न, लेट्स राइट to the NLS faculty. यहाँ पर I think they've provided the ID also for reaching out, LLB.honors@nls.ac.in. So इस ID पे हम email कर सकते हैं for any queries that we have, and let's write down to them कि एक हमें एक sample paper at least provide कराया जाए, ताकि हमें better idea हो सके कि questions किस type से आएंगे। एंड बिकॉज अभी क्या है कि अभी हर जगह गेस वर्क चलेगा एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट दिस इज सेइंग। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं उनको इंटरप्रेट किया जाएगा। people will have different interpretations as such, so it is very important to have a better clarity on these things from the university itself. And उसके लिए we need to write down to them, and साथ साथ I will also further try to decode this, किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आई विल ट्राई टू गॉच दैट। इन द मीन टाइम अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड लेट्स get the ball rolling into preparation for this examination. And so see you guys very soon in another video. And also जो present videos हैं for current affairs, for legal current affairs, they are very relevant for this examination. Do start watching those videos. And for the rest of the things I will advise you from time to time कि कैसे चीज़ें करनी है. And if you want to stay updated with respect to law entrance based examinations or law as a career, legal updates, legal current affairs, then do subscribe to this channel. Press the bell icon ताकि immediately आपके पास notification आ जाए as and when a video gets uploaded. And don't forget to follow us on Instagram.